Hi, Rohan. I was just trying on that number. I thought, Yeah. But actually, I was occupied in another call, so it went for another 5 minutes. That's the reason why I'm late for this call. So sorry for that. okay. Yes, tell me. So, Kadika, I had a chance to look at your website and to look at your profile as well, the LinkedIn profile that you have shared with me. I've got some understanding, but to take this call in the right direction, would it be okay if I ask you a couple of questions? Yeah, sure. Perfect. Can you tell me, like, since how long you have been into this business? 2 years. 2 years. Okay. And what is your current acquisition model? They're mostly referrals. Okay. They're actually 90% referrals. 90% referrals. And what about the 10%? Either it would be through LinkedIn, they would have seen, or they know me from past, and now through LinkedIn, they have connected with me. Okay, now with the LinkedIn, they are connected with you. Okay. So as I can see that like you are active on LinkedIn as well, and you are posting consistently, and you're also engaging. So are you getting inbound leads at this moment, or is it just the brand with No, you are focusing? no, it's just the brand recall. No leads. Okay. The people who are engaging with your post, are you satisfied with the kind of engagement you are getting, or is it just a random audience which is engaging with your content? Like the people who can't give you business, basically. No. I will not say that they are very great engagements. Like a few of them, of course, people who come from business, L&D, it's fine, but that would be just 15-20%. I see, I see. And have you done any uh have you ever taken any step to reach out to the right audience on LinkedIn, like connecting with the right people, or maybe engaging with the I right? have just have something in my mind. I need to change my strategy of how I write more now. Like I just have to think about that now. I've not done anything more. Like I've just done the only thing I've done is to write something which is more appropriate and useful for my audience. But now I want to pivot and make it narrow it even down to as if I'm talking to the individual who's my client only. So that's one change I want to bring now. Okay. But what about the analytics? What is the percentage of people who are actually viewing your content? Sorry, what is the What about analytics? Like from which set of audience your content has been viewed? for which set of audience my content has been? You are getting basically impressions, the highest impressions. I think I do go and see sometimes. It would be uh it bifurcates into three segments. One is organizations who have more than 10,000 employees. And I think that is where I get more engagements from because I've worked in those organizations. So I feel people who are connected with me are from Shell, Vodafone, or other big organizations like MNCs. And also from the region of Delhi NCR more because I stay in Delhi NCR also. That is what faintly I remember. I have not gone and deep dived ever into that. I see. See, that is a very crucial aspect of LinkedIn. You need to closely monitor, like whenever you write, because it is not about just posting content on LinkedIn. It is about who is actually viewing your content and engaging with your content. And if you're not satisfied with that, that means that LinkedIn is pushing your content to the wrong audience. And with that approach, you will never be able to get inbound leads. So that's the first Okay. thing. So what I suggest you is Yeah. Point. whenever Yes. whenever you post any content, just make sure, like, always have a look at the analytics of every post and then improvise it. If you find any percentage of people coming from the wrong set of audience, just simply remove them from your account. Don't stay connected with them. Oh. That is how So these LinkedIn. coaches, helping coaches, I don't need them actually. Yes. See what happens that do you understand the concept of first degree, second degree, and third degree? Mm, I- Repeat it for me. I mean, explain me again. Like on LinkedIn, against every profile you see first degree, second degree, or third degree connections has been written. I can show you very Huh, quickly. I get that. First, second, I get that.
Okay, so you completely understand what is the meaning of first, second, and third. Yeah. First, they are in my circles. Second is there's my circle, and third, no connection. Yes, yes. Second is basically a mutual, and third basically no connections at all. So Yeah. now just imagine that if a software engineer engages with your content, right? What will happen next? Then they will show your content to his target audience. And what will be his audience, his connections? Again, the software engineer. So that is the reason Mm. why your post reaches to the wrong set of audience. And this is why I always tell to everyone that like the moment you see any person who's engaging with your content is not your target audience, just simply remove them from your connections so that LinkedIn gets to know who is actually your target audience. Because the moment you write and the moment they engage, LinkedIn thinks that, oh, this is the target audience that is engaging with Kanika's content, and that is why I should push more content to this type of audience. So this is what you need to do at the very first step. And that is why I always recommend to everyone that like always have a close look after you post content. Like 12 hours, 24 hours, just identify which type of audience is viewing your content. Not that you just told me that like you're getting impressions from the people who are working in a 10,000 plus employees company, right? And I'm damn sure that is not your target audience. No, it's not that it is not my target audience. Of course, my individual clients will come from big organizations also. No, it's not I wrong. highly doubt because right now targeting the CEOs and the CX level people of a 10,000 plus companies, employees company is a very critical task. So in that case, I would suggest you to go ahead and target out the companies ranging from 10 to 50. That will give you more inbound leads 10 to 50 as in founders. as an employees, the companies which have 10 to 15 employees. 10 to 15 employees तो बहुत छोटी कंपनीज है ना फिर रोहन. That's what But you're saying. उससे आपका inbound leads increase होगी ना. So this is the audience I that didn't get it. Like, so, okay, so if I'll go back to my clients yeah. who have hired me as their coach, these are people who have worked in big organizations. For example, somebody works in GE Aerospace, somebody works in TVS, somebody works in Mercedes, somebody works in KPMG, somebody works in Shell. Okay. So these are big organizations, no? गॉट इट ठीक है मगर उस केस में फिर आपको ना एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा दैट इज द CXO लेवल ऑडियंस तो जो आपके पास जो हाँ, तो 10,000 CXOs हैं मेरे लिए इम्पोर्टेंट. नहीं यस. नहीं व्हाट आई एम तो ट्राइंग दो सेगमेंट्स हैं जिनके साथ मैं आपको बता देती हूँ. देर आर टू सेगमेंट्स आई एम डीलिंग विद. एक तो फाउंडर्स हैं एंड सीईओज हैं. 10 से 15 स्टार्टअप्स के जो ओनर्स हैं जो 50 से 100 करोड़ की रेंज में हैं, जिनकी रेवेन्यूज है ना. 50 करोड़ से कम वाले का कोई मतलब नहीं है, वो कभी कोचिंग नहीं लेगा. बिकॉज आई ऑल्सो डू समथिंग फॉर फाउंडर, आई मीन फॉर स्टार्टअप्स. Then, however, my bigger clients come from big organizations, individual coaching के लिए. Because those people have good salary. So I also define a salary bracket of 45 lakhs upwards. 45 lakhs to 1 CR, 1.5 CR. That's the kind of people who will pay me for that coaching that I do for them. Not everybody can pay. मेक सेंस मगर उसमें फिर आपको जो इंप्रेशन आ रहे हैं वो कौन सी लेवल से ऑडियंस से आ रहे हैं सीनियर लेवल से आ रहे हैं CXO से आ रहे हैं जूनियर से आ रहे हैं जूनियर तो नहीं बोलूंगी मैं. दे आर मिड टू सीनियर ओनली. वो वाला एस्पेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है. बट आई थिंक आपकी ये वाली बात सही है कि कुछ ऐसे लोग से कनेक्टेड हूं मैं जिनको जो दे डोंट ऐड एनी वैल्यू, और वही लोग आके कमेंट करते हैं. वो दोज पीपल आर जस्ट हेल्पिंग कोचेस एक्चुअली. गॉट इट ये वो तो जो आप पर्सनल ब्रांडिंग, लिंक्डइन, ये सब कर रहे हैं, सो दे आर नॉट मेकिंग एनी सेंस. गॉट इट ठीक है तो इसमें तो मतलब यू गॉट दिस जेस्ट है ना सेकंड मैंने आपको कंटेंट देखा था तो कंटेंट में तो आई थिंक इट्स ऑल गुड द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू आर पोस्टिंग एंड द काइंड ऑफ इमेजेस दैट यू आर यूजिंग क्योंकि यू आर बीइंग ट्रू राइट नाउ तो वो सब तो चलेगा ठीक है इसमें आई जस्ट हैव वन रिकमेंडेशन व्हिच इज वेट अ सेकंड अच्छा हाउ मेनी टाइम्स यू आर कमेंटिंग ऑन योर टारगेट ऑडियंस पोस्ट दैट इज वेरी लेस. बट आई कैन दैट्स वेरी लेस. मतलब आपका जो कमेंट्स है दैट इज मोर टुवर्ड्स one liners and congratulations and very insightful insights something like that आप अपना ना POV शेयर नहीं कर रहे हो एक्चुअली या फिर आप किसी को ना चैलेंज नहीं कर रहे हो आई थिंक हम्म. दैट इज व्हाट इज मिसिंग the moment you will challenge someone on their post and then you put out your views
and then you indirectly sell it, I think that will grab you more attention. तो आई I थिंक यू, get that. हाँ मतलब ये देखो, ये CFDR करने से या फिर इंसाइटफुल पोस्ट लिखने से ना, इट डजंट मेक एनी सेंस, ये तो टाइम वेस्ट है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब अगर आप दिन के 3-4 नहीं, कमेंट्स। वो तो मैंने खैर उस जिसको मैंने CBF कमेंटिंग फॉर बेटर रीच किया था, वो तो उसकी हेल्प करने के लिए किया था। वो तो इट्स नॉट टू ऐड वैल्यू टू माई सेल्फ, दैट आई टोटली गेट। बट आई गेट योर पॉइंट, यूर राइट, आई एम नॉट शेयरिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई एम नॉट चैलेंजिंग देम। बट उनके ऐसे पोस्ट्स मेरे को आते भी नहीं है जिसमें मैं उनको कुछ ऐसे, पता है कैसे पोस्ट होते हैं, वो प्रमोशन हुआ है अब किसी का, उसमें क्या है, किसी को चैलेंज करोगे। नहीं तो आप उस बट सोशल, आई थिंक दो मतलब तीन लोग हैं जिनके पोस्ट पे मैं POV लिखती हूँ। एक तो शशांक शर्मा है, जनरली वो अच्छा लिखता है। अंकुर वारिको के पोस्ट पे लिखती हूँ। बट आई थिंक आई गेट यू, आई विल रीच देयर इफ आई कीप डूइंग दैट। ठीक नहीं है। देखो यार, अंकुर वारिकू से आई एम नॉट श्योर कि आपको आपकी टारगेट ऑडियंस मिलेगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जो CXO लेवल पीपल है ना, एंगेज विद देम। हम्म। उनकी पोस्ट पर एंगेज करने से आपको बेनिफिट मिलेगा, अंकुर वारिकू की पोस्ट पे एंगेज करने से इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि अंकुर वारिको की जो पोस्ट है उसमें देयर आर स्टूडेंट्स, देयर आर पीपल, एंड देन द सिक्स लेवल पीपल एंगेज नहीं करेगा अंकुर वारिको की पोस्ट से। तो इवन इफ यू विल एंगेज विद अंकुर वारिको's पोस्ट, आपका जो कंटेंट है वो मोस्टली लर्नर्स के पास ही जाएगा। ठीक है, 1 to 2 times a day और या फिर थ्राइस अ वीक इट विल मेक सेंस। मगर मोस्टली व्हाट यू हैव टू डू कि यू हैव टू एंगेज विद योर टारगेट ऑडियंस कंटेंट ओनली। और उसमें भी ना मतलब ट्राई लाइक कि आप ये कॉन्वर्सेशन वाले पोस्ट पे कमेंट ना करो, क्योंकि मतलब वो ठीक है, इट एड्स वैल्यू। मगर मोस्टली जैसे अगर आप मान लो 10 कमेंट्स अगर आप डे कर रहे हो, तो 7 कमेंट्स आपके POV से रिलेटेड होने चाहिए, जो किसी ना किसी को चैलेंज कर रहे हैं या अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। इससे बेसिकली होगा क्या कि these people will get to know who you are, and if they agree हम्म। with your POV, तो वहां पे they will definitely come in your inbox and they want to talk to you कि चलो ठीक है, अब ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। क्योंकि विजिबिलिटी तो वैसे ही आएगी ना, सिर्फ कंटेंट पोस्ट करने से तो विजिबिलिटी आएगी ही नहीं। अगर आपको अपने टारगेट ऑडियंस हम्म। को पहुंचना है तो उनको तो एंगेज करना ही पड़ेगा ना। हम्म। दैट इज वन एक्सपेक्ट, तो ये तो आपको डेली करना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब मैं शायद से डेली कंटेंट पोस्ट पे इतना टाइम स्पेंड नहीं करूंगा जितना मैं एंगेजमेंट पे टाइम स्पेंड करूंगा, अगर मैं आपकी शूज करूँ तो। हम्म। एंड थर्ड थिंग, इसमें भी आपने आउटरीच तो स्टार्ट नहीं किया होगा। नहीं, इज आई इट? डोंट लाइक डूइंग आउटरीच। आई सी। फिर तो आई वुड रिकमेंड कि फिर आप एंगेजमेंट पे ही डिपेंड रहो, वही आपको इनबाउंड लीड्स इंक्रीज करके देगा। मतलब आई एम टेलिंग यू। बिकॉज वो इंडिविजुअली लिखना मुझे पसंद नहीं है। इट्स वेरी दैट गेट मी, आई डू दिस सर्विस, इट फील्स वेरी नॉट ग्रेट। यार देखो, या। सेल्स तभी होती है जब कुछ दिखाते हैं, ठीक है। अब इवन आई वाज इन योर सिचुएशन जहाँ पे मेरे को भी सब चीजें पसंद नहीं थी। मतलब आई आई टेल यू वन थिंग, व्हाट हैपेंड वाज कि मुझे लिंक्डइन यूज करते ना आई थिंक 7-8 years हो गए हैं आज। एंड आई गॉट अपॉइंटेड एज CM ऑफ 2 USA बेस्ड कंपनी जस्ट बिकॉज ऑफ लिंक्डइन। ठीक है। तो वहां पे दैट इज द टाइम मैंने रियलाइज कि लिंक्डइन इज नॉट अ प्लेटफॉर्म वेयर यू जस्ट पोस्ट। लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे यू हैव टू रीच आउट, यू हैव टू एंगेज, यू हैव टू बिल्ड रिलेशंस। ठीक है। मगर रिलेशन बिल्ड करने में ना प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, मतलब एवरीबॉडी सेज कि रिलेशन बनाओ, मगर नोबडी अंडरस्टैंड्स कि यार है तो 24 hours ही ना दिन के। अब हम कितने ही लोगों के साथ रिलेशनशिप बना लेंगे और वो फिर बिजनेस ना है तो वो फायदा नहीं उस रिलेशनशिप, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी वांट्स मनी। तो आई अग्री, एब्सोल्युटली राइट। हम्म। तो इस तो पार्ट बोलो, हाँ। में, इस पार्ट में मतलब अगर आपको आउटबाउंड नहीं पसंद, तो आप एंगेजमेंट पार्ट पे फोकस करो, कनेक्ट विद द राइट पीपल। ठीक है। एंड दैट्स हाउ यू कैन ब्रिंग देम इनटू योर DMs। दैट इज द ओनली मेथड ऑन लिंक्डइन। ग्रुप्स भी इतना वर्क नहीं करते हैं इस पार्ट पर। एंड ये प्रीमियम लिंक्डइन की जरूरत पड़ती है? इट वर्क्स व्हेन यू वांट टू डू आउटरीच। हम्म। वायरल होने के लिए इसकी नीड नहीं है। हम्म। ओके। यस। सो मुझे क्या लगता है ना, एक और प्रॉब्लम भी होती है बीइंग अ वुमेन, दैट बहुत लोग अननेसेसरी भी इंगेज करते हैं। ये मेरे साथ हुआ है पर्सनली आई लिंक्डइन नो। पे। नो, दिस इज ट्रू। यस यस, एंड दिस यू इज। हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। वो आपके साथ नहीं होगा, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट ये इंडिया में होता है और नॉर्थ इंडिया में ये बहुत होता है।
लोग ऐसे कनेक्ट करते हैं जैसे कि मतलब उनको इतनी जरूरत है कोच की, बट idly they just want to talk to you. They Right. really don't want to get a coach, because when you will tell them the amount of monies and resources it will take, they'll take a back step. तो इसको आप पहले ही Okay. नोट डाउन कर लिया करो ना, मतलब दिस इज द नहीं, ये प्रॉब्लम। पता होता है आपको, ये आपको नहीं पता होता है। एक अच्छा सेल्स हेड बहुत बड़ी कंपनी का भी ये करेगा आपके साथ में, बिकॉज ऐसा होता है, प्रैक्टिकली बता रही हूँ मैं। और ये आपको नहीं पता चलेगा पहले, बिकॉज वो आपका क्लाइंट ही दिखेगा ना आपको, वो आपको लगेगा आपका क्लाइंट है, नहीं यार देखो, प्रोस्पेक्ट। हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात एंड व्हाट यू आर सेइंग एज वेल एंड योर सिचुएशन एज वेल, क्योंकि ये मैंने फेस किया हुआ है। मतलब गर्ल्स के अकाउंट्स पे आई हैव पर्सनली सीन ऑल दीज स्टफ क्योंकि वी मैनेज द अकाउंट्स एज वेल। तो उसमें आई हैव पर्सनली फेस्ड ऑल दीज इश्यूज। मगर इसका ना एक ही सोल्यूशन है कि जैसे ही हमें कोई भी इनबाउंड लीड आती है, ठीक है, और हमें मतलब पता है कि वो एक अच्छे लेवल पे बैठा हुआ है वो पर्सन, ठीक है, हम पहले ही उसको नर्चर डाउन कर लेते हैं। कॉल पे जाने से पहले ही हम उसको बता देते हैं कि भाई ये हमारे प्राइसेस हैं, दिस इज द टाइम दैट आई एम गोना इन्वेस्ट इन। अगर ये आपको सेंस बनाता है तो ही वी विल कम ऑन द कॉल, नहीं मतलब तो लेट्स जस्ट लीव द कॉल। थोड़ा सा एरोगेंट लगता है, ठीक है, मगर कॉर्पोरेट लोगों को ये कभी एरोगेंट नहीं लगेगा। उन्हें पता है कि भाई सामने वाले पर्सन का टाइम जा रहा है, तो वो पर्सन अपना तो कुछ ना कुछ तो इसमें लगेगा। और इसको अगर आप और फिल्टर आउट डाउन करने के लिए ना आप ये भी कर सकते हो कि यू कैन चार्ज देम अपफ्रंट फीस, कि भाई ठीक है हम कॉल करेंगे, मेरा 1 आवर इसमें लगेगा, दिस इज व्हाट आई एम गोना डिलीवर, इफ यू आर कंफर्टेबल मैं आपसे अपफ्रंट फीस ले रही हूँ, विच इज अ वेरी वेरी लो अमाउंट, इज 499। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद वो पर्सन कहेगा, मतलब आपसे आर्ग्यू करेगा, भाई ये क्या मतलब है, फलाना ढिकाना सब चीजें। आप उसको सिंपली बताओ ना यार, अगर आप सीरियस हो, आपको मेरा टाइम चाहिए एंड आपको सर्विसेज चाहिए, तो देयर इज नो हार्म इन पेइंग 499, इवन आई गेट टू नो कि आप एक्चुअल में सीरियस हो या नहीं। तो जो आपका टाइम वेस्ट लीड्स आती है ना, वो पहले से ही आपकी फिल्टर आउट हो जाएगी वहाँ। हम्म। नहीं, ठीक है, वैसे मेरी इतनी टाइम वेस्ट लीड्स अब नहीं आती है, क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ इसको, बट आई गेट योर पॉइंट, दिस इज अ गुड पॉइंट। हाँ मतलब ठीक है। इसमें तो हम लोग यही करते हैं कि हम सीधा नर्चर डाउन ही कर लेते हैं चीजों को, दैट एक्चुअली हेल्प्स ओके। अस। मतलब यू कैन आस्क कपल ऑफ क्वेश्चन, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन बना लो जो आपको पता है कि भाई कि वही पर्सन भरेगा जो सिर्फ सीरियस है। क्योंकि यार इसमें ना मतलब मुझे भी ये लगता था पहले कि जैसे मैंने 15 क्वेश्चन पूछे किसी से, ठीक है, हम आई विल बी थिंकिंग कि यार 15 क्वेश्चन कौन आंसर कर, और मैं फिर हम्म। सोचता कि यार लीड तो पहले ही भाग जाएगी। पर एट द सेम हम्म। टाइम अगर मेरी नीड है एंड आई एम समवन इज आस्किंग मी 10 क्वेश्चंस, ठीक है, तो आई विल डेफिनेटली आंसर। डजंट मैटर 10 हम्म। 20 है 50 क्वेश्चंस है, क्योंकि मेरी नीड है तो आई विल आंसर दैट। वो लीड वहीं नर्चर आउट हो गई ना, कि उस पर्सन की एक्चुअल में नीड है एंड वो टाइम पास करने नहीं आया। तो अगर आपको मॉनेटरी टर्म्स में अपफ्रंट पेमेंट नहीं लेनी है, तो आप एक कपल ऑफ क्वेश्चंस या आप एक शीट बना लो, you ask them कि भाई ये फिल करोगे, उसके बाद ही हमारी कॉल आउट है। आई थिंक ये सही है, ये जो फॉर्म है ना, क्वेश्चंस बिफोर वी। और क्वेश्चंस में ना ट्राई करना एमसीक्यू या मतलब ज्यादा रखना, मतलब डोंट आस्क देम टू राइट इट, क्योंकि पीपल हेट्स राइटिंग। इतने क्वेश्चंस में उनको इजीनेस मिलेगी, दे विल आंसर इट वेरी वेरी फास्टली। ठीक है। ओके रोहन। बाकी आपकी प्रोफाइल में आई डोंट थिंक सो दैट देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर एनी इम्प्रूवमेंट। जस्ट वन थिंग मे बी व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, दिस इज completely योर कॉल, मगर आई वुड सजेस्ट यू जो आपका बैनर है ना, आई थिंक यू कैन like improvise it much better, because right now you are just sharing the code from Bill McCartney, right? Instead of this, just talk about yourself, just flaunt your work, because this is the only place that you have got, ठीक है। फ्लॉन्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि even on landing pages, whenever you create landing pages, right, you by the way, have you created any landing pages so far? आई हैव अ वेबसाइट। परफेक्ट, हाँ मतलब वो तो मैंने आपकी वेबसाइट देखी थी। सी जैसे लैंडिंग पेजेस के ऊपर यू पुट ऑल द इंफॉर्मेशन जस्ट वन सिंगल गो, so that like nobody has to ask you a question, because there is no way to ask you questions. The same way, don't treat your LinkedIn profile as another LinkedIn profile. Treat it as a landing page. Just imagine like if someone is checking your profile, what they want to know, do they want to hear कि भाई बिल ने क्या कहा था? No, I don't want to listen to that. I just want to see कि if I'm working with कनिका, तो कनिका की प्रोफाइल पे ऐसा क्या है जो मेरे को 3 सेकेंड्स में कन्विंस कर देगा, ओके आई नीड टू टॉक टू हर। So वो social proofs you can highlight over here, जैसे you just mentioned कि you have worked with KPMG's, all these companies, just clearly highlight those logos कि भाई
I have given the coaching to these people. That will actually convince people rather than just writing the code on the banner. This is my view. Okay, and this actually worked on different profiles as well. Where लैंडिंग लैंडिंग पेज कैसे बनेगा, बैनर से कनेक्ट कैसे होगा? मतलब लैंडिंग पेज को मैंने कनेक्ट ऐसे किया है कि just like you put all the information just one single go on landing page, मतलब वहाँ पे you create some 10 folds हमने बना दिए, और हर फोल्ड के बिहाफ पे हमने देखा कि भाई कहाँ पे कन्वर्जन आ रही है, कहाँ पे कन्वर्जन नहीं आ रही है, कौन से फोल्ड तक पीपल स्क्रॉल कर रहा है, मतलब वो 25% स्क्रॉल कर रहा है, 50% स्क्रॉल कर रहा है, 75 कर रहा है, 100 कर रहा है, 100 तो कोई भी नहीं करता वैसे, ठीक है, सब फर्स्ट 2 3 फोल्ड तक स्क्रॉल करते हैं। सो सेम लैंडिंग पेज का भी ऐसा ही सिनेरियो है लिंक्डइन प्रोफाइल। nobody is gonna read out your about section in depth। सबसे पहले सबसे जो जो बेसिक नजर में आता है दैट इज दी बैनर, कि बैनर पे क्या है, योर प्रोफाइल पिक एंड योर हेडलाइन। यही मेन 3 चीजें हैं जो कन्विंस करेगी यूजर को कि उसका तो आपके साथ बात करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि सीएक्सओ लेवल पीपल के पास ना यार 1 मिनट नहीं है आपके प्रोफाइल पे स्पेंड करने का, लेट्स बी ऑनेस्ट। क्योंकि उनको यार डेली, मतलब जैसे आपको मैसेजेस आते हैं इनअप्रोप्रिएट, वैसे ही उन लोगों को कितनी कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है डेली, एंड एवरीबडी इज सेलिंग देम द सर्विसेज। तो दे कांट स्पेंड 1 मिनट ऑन एवरी प्रोफाइल जस्ट टू चेक आउट व्हाट दैट प्रोफाइल इज डूइंग। तो वो बस वो ग्लैंस करते हैं, और ग्लैंस में उनको सिर्फ लोगोज देखने हैं, उनको अथॉरिटी देखने की आपने किस साथ वर्क किया, किस साथ वर्क नहीं किया, दैट इज व्हाट दे वांट टू सी। हम्म सो दिस इज द प्लेस वेयर आइदर यू विल लूज आउट द लीड और यू विल एक्चुअली कन्वर्ट देम। ओके, गुड पॉइंट्स रोहन, वैलिड पॉइंट्स, ओके। That's the only suggestion that I have for your friend। Okay then, thank you so much. I think I'll at least take actions on these things. फॉर श्योर फॉर श्योर। अगर इसमें आपको हेल्प चाहिए, मतलब हाउ मच टाइम कैन यू स्पेंड ऑन लिंक्डइन, जैसे अगर इफ आई टॉक अबाउट द एंगेजमेंट, क्योंकि मुझे आई नो दैट इट इज गोना टेक योर एटलीस्ट 2 hours or maybe 1 hour every day, so do you think you will be able to do this? 1 hour में कर सकती हूँ, 45 minutes to 1 hour में कर सकती हूँ। बट उससे आपकी बाकी सब चीजें भी तो हेल्प करेंगी फिर, मतलब ट्राई, ठीक है, ट्राई कर लो आप एक बार। अगर इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है आपकी, दिस इज वेयर आई कैन हेल्प यू आउट। सो आई कैन गिव यू अ सिस्टम जो बेसिकली, मैं एक बार दिखाऊँ इफ यू हैव लाइक 5 minutes। या श्योर। मैं ना लाइव डेटा दिखा रहा हूँ वन ऑफ आवर क्लाइंट्स का, दैट विल गिव यू अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सोशल लिसनिंग? Mm, again, I've heard a term, but I've forgotten now. Tell me. सी सोशल लिसनिंग में ना हम लोग क्या करते हैं, एज अ बिजनेस ओनर आई नो व्हाट आर द कीवर्ड्स दैट माय टारगेट ऑडियंस यूजेस एवरी टाइम, है ना। तो Hmm. उसमें हम क्या करते हैं, हम उन कीवर्ड्स को उनकी लिस्ट बना करके देन वी मॉनिटर दैम। मॉनिटर एज इन कि जैसे ही कोई भी यूजर लिंक्डइन के ऊपर दे विल यूज दीज कीवर्ड्स ऑन लिंक्डइन, डज नॉट मैटर whether you are connected with that person on LinkedIn or not, चाहे वो आपका फर्स्ट डिग्री, चाहे वो आपका सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री कनेक्शन है, यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डेट कब वो कंटेंट पोस्ट हुआ, ऑथर हु पोस्टेड दैट कंटेंट एंड द लिंक टू द लिंक्डइन पोस्ट। ठीक है, उसके बाद व्हाट आई हैव डन एंगेजमेंट पार्ट को सॉर्ट करने के लिए, माय इंटेलिजेंस सिस्टम बेसिकली विजिट्स दैट पर्टिकुलर लिंक्डइन पोस्ट। ठीक है, उसके बाद इट रीड्स आउट द कंप्लीट कंटेंट एंड देन आई हैव गिवन 7 फ्रेमवर्क्स टू राइट द कमेंट। ये फ्रेमवर्क तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, मैंने अपने अपने फ्रेमवर्क इसको दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स दैट आई एम वर्किंग विद। फिर वो 7 फ्रेमवर्क्स के बेसिस पे वो क्या करता है, इट आइडेंटिफाइज कि कौन सा फ्रेमवर्क इस पर्टिकुलर लिंक्डइन पोस्ट पे जाएगा, एंड देन बाय यूजिंग दैट फ्रेमवर्क इट राइट्स द कमेंट। कमेंट्स अपने आप लिखेगा वो? यस। बट वो आपके, एआई जनरेटेड कमेंट्स होंगे ना यार। वही मैंने कहा कि वो आपके फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग लिखेगा, मतलब हम्म whatever in whichever style you think or whichever in style you write, you basically create your own framework, and by using your framework it will write the code। ओके। एंड देन ये शीट में आपका पूरा डेटा आता रहेगा जो रीसेंट डेटा होता है, मतलब ओल्डर डेटा वर्क नहीं करता, जैसे फॉर एग्जांपल टुडे इज 28th, जस्ट सी आई हैव ऑलरेडी गॉट 1 2 3 4 5 लिंक्डइन पोस्ट, किसने लिखी, क्या लिंक्डइन पोस्ट का मतलब पोस्ट है, एंड देन कौन से कीवर्ड पे हमने उसको ट्रिगर किया, एंड देन द कमेंट्स एज वेल। हम्म And then मेरी टीम क्या करेगी बेसिकली ऑन दिस ऑन द बिहाफ ऑफ दीज क्लाइंट्स, दे विल जस्ट सिंपली गो, दे विल मैनुअली वेरीफाई कि पोस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इफ दे वांट टू दे विल जस्ट पोस्ट मार्केट एज पोस्टेड,
and if it doesn't meet the standard, they will mark it as not relevant. So this is very, I Okay. don't think so that like you have to spend time in identifying the LinkedIn post every other day. So जो 45 minutes जो आप मुझे बोल रहे 45 to 60 minutes, this is how you can save it. मतलब just imagine ना आपको एक sheet के अंदर you get the data सारा with comments. Now you just have what you have to do, you just have to open that LinkedIn post and then you just have to read the LinkedIn What is comment. the cost of this form, this particular thing? या इसमें ना हमारा एक अपना वर्कफ्लो चल रहा है. जस्ट सिंगल वर्कफ्लो इज वर्किंग बिहाइंड. ठीक है. सो टू एग्जीक्यूट दिस वर्कफ्लो मतलब वो आपके एंड पे चलेगा. वी विल नॉट एग्जीक्यूट इट, तो वी विल शेयर द जेसन फाइल विद यू जो एग्जैक्टली सोर्स कोड होगा. ठीक है. सो विल चार्ज 20,000 रुपीज फॉर दैट. दिस इज अ वन टाइम पेमेंट. नो मंथली सब्सक्रिप्शन. 20,000. यस. And this will work forever, like lifetime है ये. हाँ हाँ लाइफ टाइम यस. Okay. अगर मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाऊँ ना एक बार. तो जैसे वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस ऑन अनुज आर्यस प्रोफाइल. He's a director of Clearfast Air Cargo Limited and he's into the import and export business. Now, if we just go into, by the way, we built this profile from scratch, entirely from scratch. So this is how we find out his target audience content. बिल्कुल relevant, not irrelevant. मतलब हम कुछ कमेंट ही नहीं करते हैं ऐसे. जैसे अभी हमें कल मिला इमेजी का. My team has commented under it. ठीक है. अभी अभी कमेंट किया 17 मिनट्स पहले. फिर उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं. जैसे for example over here, we engaged with Valerie, who's a director of logistics at APR Energy. This was her post, and then we engaged, and then we got 73 impressions along with one like. So हमारा जो agenda रहता है ना, that is not to kill the conversation but to start the conversation. For example, look at this one. हमने Valerie के साथ ही दोबारा engage किया था. ठीक है. 6 days back on her post. Just from one single post, we got 501 impressions. At the same time, we actually asked her a question. And then we got a reply as well. So all the comments that we I are get doing, this. No, I get this because ये तो my only apprehension is with the language जो मुझे थोड़ी challenging लगती है. But ठीक है, I get your point. वो तो यार So देखो आप let you me can train it. You can train it according to your standards. वो तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है. मतलब इसमें आप ये भी कर सकते हो कि आपने उसको 5 पोस्ट दी and then how will you write comment on those 5 posts. वो उसी को ही समझ लेगा and then it will start writing the comments on your behalf. And इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है ना कि कुछ भी आपकी परमिशन के बिना पोस्ट नहीं हो रहा है. Hmm. मतलब यू हैव टू पोस्ट इट. हमने ये मैनुअल चीज रखी हुई क्योंकि लेमन हेट्स ऑटोमेशन, तो हमने कुछ भी एग्जीक्यूट ऑटोमेट नहीं किया हुआ. तो इवन तो यू विल गेट द डेटा इन द शीट, मगर उसके बाद तो पोस्ट आपको ही करना है. मतलब हम इसको ऑटोमेट कर Hmm. सकते हैं मगर हम करते नहीं है जान करके. तो अगर आपको ठीक डेटा है. इस बार भी मिल रहा है सो दैट यू कैन डिसाइड. ठीक है, Rohan. Thank you so much. Let me come back to you if I'm interested in this. फॉर श्योर. Is 20,000 your final price? That we can negotiate once you take the final decision. What can it be? I think it will make more sense when you decide to go ahead only. Because अभी डिस्कस कर चलो लेंगे ठीक फिर let's say ठीक when है, no problem. that's I on. get that. Thank you. Thank you so much. Thank you, Kanika. Have a nice day ahead. You too. Bye-bye.